हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी हियर। मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स कंजर्वेशन की। टुडे वी विल टॉक अबाउट वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स। लेट अस टॉक इन डिटेल अबाउट दिस लैंड एज अ रिसोर्स, why it is important and vital resource for us, because land is the habitat of man. All the economic activities are performed on land. This soil cover is so important for the plant growth, so it is necessary for agriculture. All the institutional setup like industrial units are set up on the land. If we see roads, railways, they are also built on the land. All the commercial activities takes place on land. The natural vegetation and wildlife are supposed to be on land. They are supported by land. Let us see, we make our houses, bungalows, flats on land. Then agriculture is done because India is agriculture based country. Maximum population of India is engaged in agriculture, so that is done on land. It's very important economic activity performed on land. This is the institutional setup, the example of large industry. This is the example of textile industry set up on land. These are all different roads, the railways and roads, how they are set up on land. This is the example of vegetable market. All the economic activities, shops are set up on land. This is another example of commercial activity, different malls. This is the example of natural vegetation, how land is supporting it. This is the wildlife. But now here one problem is there. We cannot take it so lightly. Land is fixed in size. It is an asset of finite magnitude. When I say finite magnitude, means it is limited. Can we expand the land? No. If we see in overall or in the whole universe, total land is 29% and 71% is covered by water. So as you know, out of this 29%, how much land is covered by India? India constitutes 3.28 million square kilometers. If we see the distribution of land in India, let us see through this slide. I have prepared a nice pie diagram. Land under important relief feature. If we broadly divide this 3.28 million square kilometer land into three major relief features, they are plains, plateaus and mountains, then plain part is covered 43% out of the whole Indian land, which constitute 3.28 million square kilometers. उसका 43%, 43% प्लेन एरियाज हैं और 27% प्लेटूज हैं और 30% is constituted by mountains. Let us see the land resources in India. 43% जहां हम प्लेन रीजन की बात करते हैं तो वो किस तरह से कवर होता है? 43% land of plain region provides us the facilities for agriculture and industry. 30% mountains give us, they are ensuring the perennial flow of some rivers and they provide the facilities for tourism and they are maintaining the ecological aspects. And 27% is plateau region जो कि rich है, उसमें plateaus में rich reserves of minerals, fossil fuels और forest पाए जाते हैं. So these are the plains, the plain area of India. These are 30% mountains and these are the plateaus and mountain.
The beautiful picture captured of plateaus and mountains. They cover 30% of land area of land resource of India. अब हम लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पूरे इंडिया की लैंड को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, उस पर कितने परसेंट में क्या क्या चीजें उगाई जा रही हैं और किस तरह से वो यूटिलाइज हो रही है। तो हमने यहाँ पर डेटा लिया है 2000, 1960 और 2014-15 का। अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, फर्स्ट इज फॉरेस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952, किसी भी देश के पूरी लैंड का 33% एरिया पर फॉरेस्ट होने चाहिए। बट एज पर द डेटा ऑफ 14-15, वी हैव फॉरेस्ट एरिया ओनली ऑन 23%. सो लेट अस सी रेस्ट ऑफ द डेटा। सी, अब आप देख रहे हैं फॉरेस्ट 23.3% एरिया में फॉरेस्ट है। सेकेंड है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, मीन्स जहां पर कुछ भी हम उगा नहीं सकते, बैरन लैंड है, बंजर भूमि है, जिसको हम बंजर भूमि बोलते हैं, वो 5.5% है। देन थर्ड इज एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर एरिया हमारे पास 8.7% है, मीन्स वहां पर या तो हमने घर बना लिए हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, कॉन्क्रीट जंगल हमने बना लिया है, या फैक्ट्रीज और इंस्टीट्यूशनल सेटअप 8.7% एरिया में है। देन कम्स द परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहां पर परमानेंट ग्राउंड बना दिए गए हैं, जहां पर पशुपालन होता है और वो उनके चारण के लिए, चरने का चारागृह बनाए गए हैं, चरने के लिए यूज होता है, वो है हमारे पास 3.3%. Then area under miscellaneous tree crops and groves, that is only 1%. Then comes the cultivable wasteland. जो cultivable wasteland की जब हम बात करते हैं तो that is cultivable means वहां पर cultivation की जा सकती है, लेकिन पिछले more than 5 years से वहां पर कोई खेती नहीं की जा रही है, तो वो एरिया है हमारे पास 4%. Then comes फेलो अदर देन करंट लैंड, मीन्स जहां पर 1 से 5 साल तक हमने कुछ भी नहीं उगाया है, दैट इज 3.6%. करंट फेलो लैंड, करंट फेलो लैंड की जब हम बात करते हैं, मीन्स पिछले एग्रीकल्चर 1 साल तक हमने एग्रीकल्चर वहां पर कोई भी लैंड पर खेती नहीं की है, डेलिबरेटली जानबूझकर हमने नहीं की है, जबकि की जा सकती थी. देन कम्स द नेट सोन एरिया, दिस इज 45.5%, जो कि एक्चुअली एग्रीकल्चर यूज में आ रही है. नेट सोन एरिया जहां पर कुछ उगाया जा रहा है, इसको हम ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी बोलते हैं, दैट इज 45.5%. अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो हमारी पूरे इंडिया की 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड में से 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड है. It's a big amount of land which is degraded. उसमें से 28% forest degraded area है और 56% वाटर इरोडेड एरिया है, जो पानी के साथ बहा ले गया है लेयर को, हमारी पृथ्वी की पूरी लैंड की पूरी अपर लेयर को पानी ने बहा दिया है. उतना 56% ऑफ 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज वाटर इरोडेड. 95% ऑफ बेसिक नीड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड. ह्यूमन बीइंग की 95% जरूरतें लैंड के द्वारा ही पूरी की जाती हैं. अब लैंड डिग्रेडेशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी द ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज आर फॉर दिस पॉपुलेशन फुलफिलमेंट एंड देयर नीड्स. हम पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जंगल काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, एग्रीकल्चर की लैंड को कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक के लिए घर बनाना है, तो उसके लिए हम कंक्रीट जंगल बनाते जा रहे हैं. हम अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कंक्रीट जंगल में तब्दील कर रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है.
तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग, कैटल और कैटल रेयरिंग के लिए, और हम उनको जमीनों पर, एग्रीकल्चर लैंड पर खुला छोड़ रहे हैं खाना खाने के लिए। माइनिंग और क्वेरिंग जैसी एक्टिविटीज भी बहुत सारा पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन में हिस्सेदार हैं। तो इन सबको हम कैसे कंट्रोल करें, और कौन कौन से स्टेट्स किस किस प्रॉब्लम्स के साथ डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। आइए देखिए, ये देखिए, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। अगर हम यहां पर बात करें, ये है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का ये एरिया। दिस इज वेरी रिच इन मिनरल्स। ड्यू टू माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन इज हैपनिंग इन दीज स्टेट्स। यहाँ पर हमने पेड़ों को काट दिया है, तो इन स्टेट्स में डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग इज रिस्पॉन्सिबल। और अगर हम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर ओवरग्रेजिंग भी एक प्रॉब्लम है। लैंड डिग्रेडेशन में ओवरग्रेजिंग, कैटल को खुला छोड़ देना जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दिस इज द बिग प्रॉब्लम हियर। अब यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम प्रॉब्लम है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन की वजह से यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो we need to control it. Now the question arises, how? There are certain solution how to control this problem. अब इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? There are some solutions too. कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं होती, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। इस तरह से हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं। उसके लिए कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अफॉरेस्टेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ग्राउंड बनाने चाहिए, हर जगह पर उनको खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट, एग्रीकल्चर लैंड में कि सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम हो रही है, पेड़ उखड़ जाते हैं, उसके लिए हमें बीच बीच में बड़े पेड़ उगा देने चाहिए, जिसे हम शेल्टर बेल्ट्स के नाम से जानते हैं। शेल्टर बेल्ट से हमें इस चीज में फायदा मिलेगा और हम लैंड को कंजर्व कर पाएंगे। माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए, और जो भी इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स हैं, जो वेस्ट है, जो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उनका भी हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अफॉरेस्टेशन, इस तरह से हमें डिफरेंट पेड़ उगाने चाहिए। ग्रेजिंग ग्राउंड पर इस तरह से हमें कंट्रोल ला देना चाहिए, और इस तरह से शेल्टर बेल्ट्स लगाकर हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं और उसे लैंड डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं।